بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی نئی ویڈیو کا آغاز ایک نئی دلچسپ کہانی سے کرتے ہیں۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے عید تو مبارک ہے۔ میرے بھائی، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تم رزق حلال پر توکل کبھی مت چھوڑنا۔ ایسے بندے کو اللہ پاک اطمینان قلب کی اس نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے جو دنیا میں ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ فیکٹری سے گھر کا راستہ اتنا طویل تو نہ تھا جتنا آج ہو گیا۔ یوں ہی بے مقصد بائک دوڑاتا، جیب میں بجتی فون کی گھنٹی کو مسلسل نظر انداز کیے وہ سڑکیں ناپتا پھر رہا تھا۔ کیسے چلے گا آپ گھر؟ اسے کیا بتاؤں گا؟ انہی سوالوں میں الجھے دماغ کے ساتھ تھک ہار کر بالآخر جب گھر پہنچا تو سائرہ کو پریشانی سے اپنا منتظر پایا۔ دونوں بچے بھی اب تک جاگ رہے تھے۔ عمیر کدھر رہ گئے تھے آپ؟ اسے اندر آتا دیکھ کر وہ اس کی جانب لپکی۔ کوئی 10-12 کال تو کی ہوں گی میں نے، مجال ہے جو کسی ایک پر بھی جواب آیا ہو۔ فیکٹری ورکر کی اچانک میٹنگ آ گئی تھی، اس لیے رکنا پڑا۔ فوری طور پر جو جواب سوجھا دے کر آگے بڑھ گیا اور گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ پھر بھی ایک میسج لکھ بھیجنے میں کوئی حرج نہ تھا۔ مجھے آپ کی اتنی فکر ہو رہی تھی۔ سائرہ کو اس جواب سے تسلی نہ ہوئی، وہ ہنوز وہیں کھڑی تھی۔ بس شور میں پتہ ہی نہیں چلا کچھ کھانے کو ملے گا یار؟ اسے باہر بھیج کر عمیر نے کچھ پل سکون لینا چاہا۔ اچھا ابھی لاتی ہوں کہہ کر وہ باہر نکل گئی تو اس نے بھی کروٹ بدل کر آنکھیں موند لیں۔ ابھی چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ 3 سالہ ہبا دھب سے اس پر آن سوار ہوئی اور اپنی توتلی زبان میں باتیں کرنے لگی۔ ماما نے آپ کے لیے توفتے بنائے ہیں بابا، مزے تے ہیں، کھائیں دے آپ؟ اچھا مزے کے ہیں تو پھر تو بابا ضرور کھائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اٹھنا پڑا۔ وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ دیکھیں بابا، میتھ کے ٹیسٹ میں میرے فل مارکس آئے ہیں۔ ہبا سے بڑا اویس بھی اپنی نوٹ بک اٹھائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ویری گڈ میرا بیٹا، خوب محنت کیا کرو۔ بیٹے کے ماتھے پر پیار کر کے عمیر نے اسے شاباش دی تو وہ خوشی سے نہال ہو گیا۔ کیا خیال ہے ہبا بیٹا، ہو جائیں پھر بھائی کے لیے تالیاں؟ بچوں میں گھل مل کر وہ کچھ پل کے لیے اپنی تکلیف فراموش کر چکا تھا۔ چلو بچوں اپنے اپنے بستر پر جاؤ دونوں، اور بابا کو کھانا کھانے دو۔ سائرہ کھانا لے آئی تو وہ بھی منہ ہاتھ دھونے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیریت تو ہے نا سب؟ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں آپ۔ کھانے کی بجائے کہیں اور مگن اسے نوالوں کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر سائرہ پوچھے بنا رہ نہ پائی۔ شروع میں تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، مگر سائرہ کے مصر ہو جانے پر اسے ساری بات بتانی ہی پڑی۔ دراصل 2 روز پہلے کچھ فیکٹری ورکرز نے سپلائی لے جانے والے ٹرک ڈرائیوروں کے ساتھ مل کر راستے میں ہی کافی سارا مال اتروا کر کہیں غائب کر دیا اور واقعے کو ڈکیتی کا نام دے کر بری الذمہ ہو گئے۔ فیکٹری کے مالک کو کسی طرح اس بات کی خبر ہو گئی تو اس نے پولیس کے ذریعے مال برآمد کروا کے ان سب کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے۔ مال کی یہ سپلائی چونکہ میری نگرانی میں ہوئی تھی، دوسرا ان میں سے 2 لڑکوں کے ساتھ میری جان پہچان بھی تھی۔ ان کا ساتھی ہونے کے شبے میں مالک نے مجھے بھی نکال باہر کیا ہے، حالانکہ میں اس تمام واقعے میں بالکل لا علم اور بے قصور ہوں۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ؟ عمیر کی بات سن کر سائرہ کی تو آنکھیں چھلک پڑی۔ فیکٹری کو دیے اتنے سالوں کی محنت کا یہ صلہ ملا ہے کہ یوں کھڑے کھڑے نوکری سے بے دخل کر دیا گیا ہوں۔ مالک نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میرا بھی گھر بار ہے، کون دے گا مجھے اتنی جلدی نوکری؟ آگے رمضان بھی آ رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں بہتر نوکری عطا کرے گا۔ وہ ذات مسبب الاسباب ہے، بالکل بھی دکھی نہ ہو۔ سائرہ کی طرف سے ہر ممکن دل جوئی کرنے پر وہ کسی حد تک ذہنی طور پر پرسکون ہو چکا تھا۔ مسلمانوں پر اپنی بے شمار برکتیں اور رحمتیں نچھاور کرنے کے لیے ماہ رمضان کا نزول ہو گیا۔ عمیر تقریباً روزانہ ہی نوکری کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا اور روزے کی حالت میں در بدر پھرتا۔ دیکھیں فی الحال تو ہمارے پاس ورکرز پورے ہیں، اپنا رابطہ نمبر چھوڑ جائیں، ضرورت پڑنے پر آپ کو کال کر دی جائے گی۔ ہر جگہ سے لگ بھگ کچھ ایسا ہی جواب سننے کو ملتا اور وہ مایوس ہو کر گھر لوٹ آتا، جہاں سائرہ ہمیشہ کی طرح مسکرا کر استقبال کرتی کہ اس کی ساری ٹینشن دور ہو جاتی۔ پتہ ہے سائرہ، تمہاری یہ مسکراہٹ میرے لیے کس قدر قیمتی ہے، جو مایوسی کے گھپ اندھیروں سے نکال کر مجھے روشنی میں لے آتی ہے۔ دروازے پر ہی کھڑا وہ اسے بتا رہا تھا۔ یہی تو میں چاہتی ہوں کہ بجائے نا امید ہونے کے آپ بس کوشش جاری رکھیں، میرے اللہ نے چاہا تو ضرور کامیابی مقدر بنے گی۔ بیوی کی ڈھارس اسے اندر تک سرشار کر دیتی اور جس دن وہ گھر میں ہوتا تو سائرہ کو معمول کے کاموں میں مگن دیکھتا، بنا کسی خرچے کا تقاضا کیے یا پیسوں کا مسئلہ اٹھائے۔ بچوں کی دیکھ بھال، انہیں پڑھانے کھلانے کے ساتھ ساتھ نماز اور تلاوت قرآن پاک بالکل نہ بھولتی۔ عادل، سائرہ کا بھائی،
हर दूसरे तीसरे रोज़ आकर सौदा सलफ दे जाता। रोल, नगेट्स, समोसे, कबाब, चाट, जूस, शेक वगैरह रोज़ाना के हिसाब से दस्तरखान पर मौजूद होते, बल्कि अक्सर ही वो हमसायों के यहाँ भी अफ्तारी भिजवा रही थी, सब जानते हुए भी कि मैं आजकल बेरोज़गार हूँ। सायरा की इस आदत में कोई बदलाव नहीं आया, बजाय हाथ रोक कर रखने के ये फजूल खर्ची मेरी समझ से तो बाहर है। बीवी की दिल आज़ारी उसे रवा न थी, लिहाजा ये बात महज उमैर की सोच तक ही महदूद रही। रमज़ान का दूसरा अशरा भी इख्तिताम पजीर होने को था। एक तो आज घर से निकलते निकलते देर हो गई, दूसरे जहाँ गया था उधर काम भी नहीं बना तो खासा बेजार हो गया। होटलों में बर्तन धोने वाला काम ही रह गया है, नौकरी तो मिलने से रही। चुपचाप मुझे अब यही काम कर लेना चाहिए। सड़क किनारे बाइक रोके इन्हीं ख्यालों में महव था कि किसी मेहरबान सी आवाज़ पर वो चौंका। भाईजान आएँ, रोज़ा अफ्तार कर लें, सायरन बजने को है। सामने सड़क किनारे पर एक तरफ अफ्तार के लिए दस्तरखान बिछाए जा रहे थे, इधर उधर बल्कि गाड़ियों, रिक्शों वगैरह से भी लोग निकलकर वहां आके बैठने लगे। बाइक एक जानिब खड़ी करके वो भी इधर जा बैठा। शरबत, खजूरें, समोसे, बिरयानी सब कुछ ही उसके आगे रख दिया गया। कैसा रूपरवर नज़ारा था। गर्दन घुमाकर उसने अपने आसपास देखा, अमीर गरीब सब एक जगह एक साथ बैठे रोज़ा अफ्तार कर रहे थे। काश ये खुलूस और इंसानियत हमारे मुल्क के लोगों में सारा साल ही नज़र आती रहे तो क्या ही बात है। ये क्या कि रमज़ान ख़त्म होते ही लोग अपनी हरकतों से शैतान को मात देने लगे। शिद्दत से उसके दिल में ये ख्याल उभरा था। नमाज मगरिब अदा होते ही सड़कों पर यकदम रश बढ़ गया। मर्द, औरतें, बच्चे सब ही ईद की शॉपिंग के लिए निकल खड़े हुए थे। अगर यही हाल रहा तो और कितने दिन सायरा मेरे लिए मुस्कुरा कर दरवाज़ा खोलेगी। कहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी सर उठा लें। मोहब्बत और चाहत जैसे नर्म गुदाज जज्बात कहीं और उड़ान भर जाते हैं, पीछे सिर्फ तलखियाँ रह जाती हैं। सायरा मैं सोच रहा हूँ अपनी बाइक बेच दूँ ताकि कुछ पैसे हाथ आ जाएं, घर के अखराजात में काम आएंगे। फिर ईद भी आ रही है, 100 खर्चे निकल आते हैं। घर आकर पहली फुर्सत में ही उसने बीवी से मशवरा तलब किया, जो उसे किसी तौर पसंद ना आया। जब गुजारा हो रहा है तो फिर ज़रूरत ही क्या है इसे बेचने की। रोज़ रोज़ थोड़ा ली जाती हैं भला ऐसी चीज़ें। बिना इसके बसों और रिक्शों पर आने जाने की जो ख्वारी होगी उसका भी आपने सोचा है? सोचा तो ये भी था कि फैक्ट्री से इस बार जो ईद पर बोनस मिलेगा तुम्हारे और बच्चों के लिए उसमें से कपड़े और जूते वगैरह आ जाएंगे। उमैर, मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि सर पर हमें ये छत दी है, वरना किराया निकालते हुए कितनी मुश्किल हो जाती। कपड़ों का क्या है, वो तो आ ही जाएंगे। हर बार की तरह इस मर्तबा भी शौहर की दिलजोई करके सायरा ने उसे मुतमईन कर दिया था कि वो दिल में इसकी समझदारी का कायल हो गया था। अगले रोज़ घर लौटा तो सायरा और बच्चे घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो शॉपिंग बैग से लदी अंदर दाखिल हुई। बच्चे भी हमरा थे। दरअसल भाभी का फ़ोन आया था, वो ईद की ख़रीदारी के लिए निकल रही थी तो मैं भी साथ चली गई। इसे सामने बैठा देखकर सायरा ने फ़ौरन सफाई पेश की। कहीं रोड पर ना हो आप, इसलिए फ़ोन करके नहीं बताया। एक चाबी तो आपके पास ही होती है ना। नए कपड़े और जूते पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। और ये आपके कपड़े, स्काई ब्लू और ऑफ वाइट रंगों के 2 कुर्ते उसकी जानिब बढ़ाए और कहने लगी, दर्जियों ने तो वैसे भी इन दिनों सिलाई के कपड़े लेने बंद कर दिए हैं, इसलिए मैं रेडीमेड ही ख़रीद लाई हूँ। बच्चों तक तो ठीक है सायरा, उनकी ईद है, मगर मेरे कपड़ों पर पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। कुर्तों पर एक निगाह डालकर उमैर उल्टा उस पर खफा होने लगा। पता भी है जबकि मैं इन दिनों बेरोज़गार हूँ, जगह जगह धक्के खाने के बावजूद भी कुछ हासिल नहीं हो पाया, और तुम हो के फजूल में इन चीज़ों पर रकम उड़ाती फिर रही हो जिनके बगैर भी गुजारा हो सकता है। ऐसे हालात में जब आदिल ने हमारा ख़र्चा उठा रखा है। अंदर कई रोज़ से दबा गुबार बाहर निकल आया तो अजियत से उसका लहजा तल्ख तर होता चला गया। कैसा खर्चा? आपको गलत फहमी हुई। हमारा आदिल भाई तो क्या किसी और पर भी एक आने का उधार नहीं, ये सब कुछ मेरी अपनी कमाई से आया है। तेज़ तेज़ बोलती सायरा की ज़ुबान फिसली थी। तुम्हारी कमाई? मारे ताज्जुब के उमैर की आंखों की पुतलियां फैलती चली गईं कि सायरा को कहना पड़ा, यूँ परेशान मत हो आप, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके चेहरे पर नज़रें जमाए वो जवाब का मुंतज़िर था। उमैर, मैं घर में बैठकर कोई काम करके आपका हाथ बटाना चाहती थी ताकि कल बच्चों के आला तालीम के लिए हमें माली मसाइल दरपेश ना हो, लेकिन जब भी आपसे इजाज़त मांगती थी आप नाराज़ हो जाते कि बस घर और बच्चों पर तवज्जो दो। इसलिए आपको बताए बगैर मैंने छोटा सा काम शुरू कर रखा है। नगेट्स, कोफ्ते, रोल, गोला और शामी कबाब वगैरह बनाकर आदिल भाई के स्टोर पर रखवा देती हूँ। इसका सामान वगैरह भी उन्हीं से मंगवाती हूँ।
फिर तैयार माल भी वहीं ले जाते हैं। किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर रही थी। 6 माह हो गए हैं मुझे ये काम करते हुए। खालिस मिसालों के इस्तेमाल से मेरी बनाई चीज़ें हाथों हाथ बिक जाती हैं। शुक्र है अल्लाह का कि आमदनी अच्छी हो रही है। सबसे बढ़कर मैं खुश हूँ कि आज अगर आपकी नौकरी ख़त्म हुई है तो इस काम की वजह से ही हम दूसरों की तरफ देखने और इनसे उधार मांगने से बच गए हैं। ज़िंदगी में यकीनन कोई नेकी की है मैंने, जिसका सिला तुम जैसी नेक बीवी के मिलने की सूरत में है। उमैर की आवाज़ रिंध गई थी। मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ मेरे लिए बाइस रहमत है। तुमने सच में साबित कर दिया कि मिसाली बीवी क्या होती है। अब इसका हाथ थामे वो इकरार कर रहा था, लेकिन अगले ही पल वो गज़बनाक हुआ। मुझसे ये सब छुपाने की तुम्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। कैसी सज़ा? सायरा का रंग फक हो चुका था। जब तक मेरी नौकरी का कहीं बंदोबस्त नहीं हो जाता, तुम्हारी सज़ा ये है कि मैं भी तब तक इस काम में तुम्हारी मदद करूँगा। बोलो, मंजूर है? चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उमैर ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया था। जी बिल्कुल, 100% मंजूर है। रुकी हुई सांस बहाल करती सायरा ने अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। यानी कि अब हम ऑनलाइन ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। ये भी डन। इस बात पर उमैर ने हंसकर जवाब दिया। अहले ईमान को ईद का इनाम देकर मेहमान रमज़ान अपनी रौनकें समेटता रुखसत हो चुका था। बच्चों के हमरा ईद की नमाज़ पढ़कर वो मस्जिद से बाहर निकल रहा था कि फैक्ट्री के मालिक जवाद साहब को अपनी तरफ आता देखकर रुका। सर, आप यहाँ कैसे? सारी रंजिश भुलाकर गर्मजोशी से ईद मिलकर उसने पूछा। उमैर, मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, अपने किए की माफ़ी मांगने। उनके चेहरे पर निदामत के आसार वाज़े थे। मुझे अपने घर चलने का नहीं कहोगे? बड़ी अपनायत से वो उसका हाथ पकड़कर बोले। जी सर, आएँ प्लीज़, मुझे खुशी होगी। उमैर, मेरे दिल ने शुरू से ही इस बात को तस्लीम नहीं किया कि तुम्हारा भी वारदात में कोई हाथ हो सकता है। इसके घर के छोटे मगर साफ़ सुथरे ड्राइंग रूम में बैठे वो इतराफ़ कर रहे थे। वर्कर्स की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए हमने फैक्ट्री में जो खुफिया कैमरे लगवा रखे हैं, उनमें से कल इत्तफाकन एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जिसने मेरे शक को यकीन में बदल कर रख दिया। वारदात में मुलविस राहील और असद के अलावा 2 और लड़के तुम्हारे साथ खड़े हैं। नुमायाँ आवाज़ के साथ इन सब को तुम रिज़्क़ हलाल कमाने की तलकीन करते नज़र आ रहे हो। जी बिल्कुल सर, मेरा रिज़्क़ हलाल पर पक्का ईमान है और हराम से नफ़रत है। और सर, आपको धोखा देने से कहीं बेहतर था कि मैं मर जाता। इसका पुरएतमाद लहजा, आंखों से झलकती सच्चाई देखकर जवाद साहब बेख्तियार बोल उठे। तो फिर ईद के बाद फैक्ट्री आना शुरू हो जाओ। मुझे तुम जैसे नेक नीयत और ईमानदार वर्कर्स की ही ज़रूरत है। ये तुम्हारी 2 माह की तनख्वाह और साथ में ईद का बोनस। एक लिफाफा उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहने लगे। और ये मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम। उन्होंने एक और लिफाफा उसको पकड़ा दिया। लेकिन इस बार तुम स्टोर इंचार्ज नहीं बल्कि मेरे तीनों स्टोर्स के सुपरवाइज़र बन के ड्यूटी दोगे और सैलरी भी इसी हिसाब से बढ़ा दी जाएगी। इतने में सायरा चाय, कबाब और शीर खोरमा की ट्रे ले आई। कैसा हसीन समा था। ईद एक साथ कई खुशियां लेकर इस घर के आंगन में उतरी और उमैर और सायरा के चेहरों पर रक्सा होती कई रंग बखेरती चली गई।